جس نون پر جزم ہو اس کو کہتے ہیں نون خفیفہ. خفیفہ مطلب ہلکا. خفیف کہتے ہیں اس کو عربی میں ہلکا. اس کا پڑھنا مشکل نہیں ہوتا ہے. تو نون ثقیلہ کس کو کہیں گے؟ نون مشدد کو. نون خفیفہ کس کو کہیں گے؟ نون ساکن کو. تو کلمے اسی طرح اگر کسی کلمے کے آخر میں یہ نون آ رہا ہے یا یہ نون والا جزم والا نون آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. جیسے قرآن کریم نے استعمال کیا لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بھی ضرور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. لَيُسْجَنَنَّ. اسی طرح ہے لَيَضْرِبَنَّ، ضرور بھی ضرور اسے مارا جائے. لَيَضْرِبَنَّ، ضرور بھی ضرور مارے گا وہ ایک مرد. ہم نے کہنا وہ آدمی اس کو ضرور مارے گا. ایک ہوتا ہے نا وہ مارے گا، یہ وہ ایسے ہی یضربو. لیکن اگر ہم نے تاکید سے کہنا وہ ضرور مارے گا اس کو تو ہم کہیں گے لَيَضْرِبَنَّ. اس نون نے اس کو دیا ہے زیادہ کہ وہ ضرور بھی ضرور کیا کرے گا، اس کو مارے گا. تو اگر یہ نون کسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا وہ جو اس سے پہلے والا وہ کیا ہے، فعل ہے. اسی طرح دوسرا ہے لَيَضْرِبَنَّ. کیا ہے؟ لَيَضْرِبَنَّ. یہ جزم والا ہے لَيَضْرِبَنَّ. اگر کسی کلمے کے آخر میں یہ والا نون آ رہا ہے، کون سا؟ جزم والا نون، تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کون سا، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. اسی طرح لَيَسْمَعَنَّ. لَيَسْمَعَنَّ، تو یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. فعل. یہ فعل ہے. کیا ہے یہ؟ فعل. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون مشدد یا نون ثقیلہ. اسی طرح لَيَنْصُرَنَّ. بتائیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ نون ساکن ہے. اس لیے کہ اس کے آخر میں نون خفیفہ یعنی جزم والا نون آ رہا ہے. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو نمبر 7 کیا ہے؟ کلمے کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا نون خفیفہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل ہی ہوگا. اس لیے کہ فعل کی علامت کیا ہے کہ فعل پر ہی یہ نون ثقیلہ بھی آتا ہے اور نون خفیفہ بھی. اسم پر نون ثقیلہ نہیں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کس کو؟ ایک تو آگے پڑھو گے یہ تو لاسٹ والا یہاں اس کا بھی یہی معنی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ضرور بھی ضرور. جب پڑھو گے اس کی پوری گردانیں آپ پڑھو گے، پوری لمبی 14 گردانیں، ان کا الگ الگ معنی. اس کے بعد ہے نمبر 8 کلمے کا امر ہونا. کلمے کا امر کہتے ہیں کس کو؟ امر کہتے ہیں حکم کو. کسی کو آرڈر کرنا اس کو کہتے ہیں کیا؟ امر. ہم نے کہا کسی کو کھانا کھا تو یہ بھی کیا ہے؟ امر. کسی کو کہا غلط کام مت کر، یہ بھی کیا ہے؟ امر. اسی طرح کسی کو ہم نے کہا تو چلا جا، یہ بھی کیا ہے؟ اردو میں امر ہے، حکم ہے نا، حکم ہے. اسی طرح کسی کلمے کے اندر امر کا معنی ہے، کیا ہے؟ امر ہے. کوئی کلمہ کیا ہے؟ امر ہے، اس میں حکم ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. اسم میں امر کا معنی راشد، اس کے اندر اسم کا امر کا معنی ہے خالد، زاہد، فاطمہ، تو اس کے اندر ہے کہیں امر کا معنی؟ امر کا معنی امر کی کون ہوتا ہے؟ فعل ہی امر ہوتا ہے، اسم یہ امر نہیں ہوتا. جیسے نصر سے معنی ہے انصر، کیا آئے گا؟ نصر سے انصر. اگر ہم نے کہنا کسی کو آپ مدد کرو تو کیا کہیں گے؟ انصر. اسی طرح ہم نے کسی کو کہنا ہو آپ چلے جاؤ تو ہم کہیں گے اذهب. کیا کہیں گے؟ اذهب الى فرعون. اذهب چلے جائیے، اذهب چلے جائیے. اسی طرح ہم نے کسی کو کہنا آپ سنیے تو ہم نے کہنا اسمع. کیا کہیں گے؟ اسمع. جب آپ سر پڑھو گے تو سر میں آئے گا کہ پیش کہاں پہ آئے گا، زیر کہاں پہ آئے گا، اس طرح کی چیزیں اسی میں پڑھو گے قاعدے کے تحت. تو اگر کوئی کلمہ امر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا یا اسم ہوگا؟ فعل. اس لیے فعل ہی امر ہوتا ہے، اسم امر نہیں ہوتا ہے. جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ
अहद, आप कह दो, कुल आप, ये बना है काला यकूल, माजी आएगा इसका काला, अगर हमने कहना उसने कहा तो क्या कहेंगे काला, अगर हमने कहना वो कहता है हम कहेंगे यकूलु, क्या कहेंगे यकूलु, अगर हमने किसी को कहना हो तू कह तो हम क्या कहेंगे कुल, कुल कूला कूलू, इस तरह आता है सबके लिए, एक के लिए कुल, दो के लिए कूला, तीन या इसी तरह के लिए कूलू, औरत के लिए कूली, मुअन्नस के लिए दो अगर औरतें हों कूला, और जमा के लिए कुलना। तो अगर एक आदमी को हमने कहना तो हम कहेंगे कुल हुवल्लाहु, आप कह दो, तो इससे ये भी क्या है अमर है, कुल क्या है अमर है, लिहाजा ये भी है फेल या इसमें है फेल है। फेल कैसे पता चला हमें ये फेल है, अमर का इसलिए कि इसके ये क्या है ये अमर है, और अमर होना ये फेल की अलामत है, इसम की अलामत, इसम कभी भी अमर नहीं होता है। कुरान में दूसरी जगह फजलिदू, असल में इजलिदू क्या है ये फाइ, इसमें कुछ पीछे और एक मजमून उसी के अंदर से, फजलिदू इजलिदू, जलद यजलिदू, इजलिदू तुम कोड़े मारो, इजलिदू कोड़े मारो, तो किसी को ऑर्डर कर रहे हैं ना आप कोड़े मारो, तो ये भी क्या है अमर है, तो अमर फेल होता है, अमर इसम नहीं है। क्या आपको समझ आ गया अच्छी तरह? उसके बाद है किसी कलमे का नहीं होना, नहीं एक होता नहीं, नहीं नहीं, किसी कलमे का नहीं होना, नहीं होने का मतलब उसमें किसी काम से रोका जा रहा है, अगर किसी कलमे में कोई कलमा ऐसा है कि उसमें किसी काम से रोका जा रहा है, उसका माना है न करने का, किसी को कहा जा रहा है ये काम मत कर, जैसे कोई गलत काम कर रहा है उसको कहें ये काम मत कर, कोई चोरी कर रहा है उसको कहें ला तसरिक, चोरी मत कर, कोई और कोई काम कर रहा है उसको उसके काम से रोक रहे हैं, या कोई खाना खा रहा है उसको कहें ला ताकुल, खाना मत खा, कोई पानी पी रहा है हमने उसको कहा ला तशरब, पानी मत पी, कोई हमारी बात सुन रहा है उसको कहें ला तस्मा, ला तस्मा आप मत सुनिए। इसी तरह कोई मदद कर रहा है किसी गलत इंसान की, हम कहेंगे ला तंसुर, मदद मत कर। ला तंसुर जज़्म आएगा आखिर में, ला तंसुर आप मदद मत करो। तो अगर कोई पूछे ये तंसुर ये इसमें है या फेल, हम क्या कहेंगे फेल है। कैसे पता चला हमें? इसमें नहीं कर सकते, इसलिए कि ये नहीं है, ये क्या है नहीं, और नहीं कौन होता है फेल होता है, इसमें नहीं नहीं होता है। कुरान में है वला तत्तबि अहवाअहुम, क्या है वला तत्तबि, आप उनके ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए, आप उनके ख्वाहिशात की पैरवी। अगर कोई पूछे ये तत्तबि ये इसमें है या फेल है, हम क्या कहेंगे फेल है। हमें कैसे पता चला? शुरू में नहीं है, इसलिए कि ये कलमा नहीं है, क्या है पूरा कलमा, इसमें तो ला नहीं का तो है ही, लेकिन पूरा कलमा क्या है नहीं है, और नहीं फेल ही होता है इसमें, ये तो हो गया यहाँ। अगर कोई पूछे ये अहवा ये इसमें है या फेल, हम क्या कहेंगे ये इसमें है, क्यों? इसलिए कि ये जमा है, क्या है जमा, इसका माना है ख्वाहिशात। वला तत्तबि, और आप पैरवी मत कीजिए अहवा और उनके ख्वाहिशात की। इसी तरह ला तजरिब, आप मत मारिए, ला तजरिब आप मत मारिए, तो ला तजरिब ये इसमें है फेल है या हर्फ है? फेल है। फेल कैसे पता चला है फेल है? नहीं, इसलिए कलमा क्या है कलमा नहीं है, जो नहीं होता वो क्या होता है फेल होता है, वो इसमें नहीं होता है। इसके बाद है नंबर 10 कलमे के आखिर में जमीर का होना। देखो जमीर क्यों कहते हैं, ये है जमीर, हु हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं जमीर। क्या कहते हैं इसको? आप देखो कुरान करीम में बहुत जगह होगा, मतलब बहुत सारी आयतों में इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए, हु इस्तेमाल होगा, हुमा होगा,
इय्याक नअबुदु इय्याक, ये भी एक ज़मीर है, व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये हर सूरत में हमें ये ज़मीरें मिलेंगे ही मिलेंगे। इनको भी इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं, बल्कि हम इसको मतलब शार्ट पढ़ेंगे। ये ज़मीर को, कौन सी ज़मीर का क्या नाम होता है। तो इसको कहते हैं ज़मीर। क्या कहते हैं इसको? हु यानी एक, अगर जो इंसान गायब है उसके लिए, हुमा दो अगर गायब उनके लिए, हुम। अभी यहाँ पर ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, इसको नहीं लिखना आप, जब इसका सबक पढ़ेंगे वहां पर इसको अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। हु आता है मतलब ये भी एक गायब ज़मीर है, ये भी गायब के लिए, दो के लिए, ये जमा के लिए, ये वाहिद मुअन्नस के लिए, ये तस्निया मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस के लिए। तो इसका नाम है ज़मीर। क्या नाम है? अगर किसी कलमे के आखिर में ये आ रहा है, क्या ये ज़मीर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये फ़ेल है, ये इस्म पर ज़मीर नहीं। राशिदु हु नहीं होगा कभी भी, राशिदु, बल्कि ज़रबहु आएगा। क्या आएगा? जैसे ज़रबा, ज़रबा उसने मारा हु उसको, तो हु का तर्जुमा होगा उसको। ज़रबहुमा उसने मारा उन दोनों को, ज़रबहुम इसी को हम लेंगे ज़रबहुम, उसने मारा उन सब को। तो अगर किसी कलमे के आखिर में ये ज़मीर आ रही है, ये वाली ज़मीर या ये कोई भी ज़मीर आ रही है, तो हमें पता चलेगा वो कलमा क्या है, फ़ेल है या इसमें है? फ़ेल है। इसलिए कि अगर किसी कलमे के आखिर में ज़मीर आती है वो क्या होता है? फ़ेल। इसम पर ज़मीर नहीं आती है। अगर शुरू में हो जैसे हुमुल मुफ्लिहून, हुमुल मुफ्लिहून, लेकिन मुफ्लिहून है नहीं ना, ये तो इसमें है और इसमें फ़ाइल है। नसरहु, नसरहु, तो नसरहु, कोई पूछे कि नसरा ये इसमें है या फेल है? कैसे पता चला हमें? इसके आखिर में क्या आ रही है, और इसके अंदर भी एक ज़मीर होती है, इसके अंदर भी, इसका हम तर्जुमा कर रहे हैं, उसने उसको उसकी मदद की, उसने उसकी मदद की। और जब इसको पूरा मतलब साफ लिखेंगे इसका तर्जुमा इसका होगा असल नसरा खालिदुन माजिदन, ये है असल इसकी। नसरा खालिदुन माजिदन, जो इंसान मदद करेगा उसकी ज़मीर है इसके अंदर, और जिसकी मदद करेगा उससे मुराद है ये। मसलन ये क्या होता है, जैसे उर्दू में हम बात करते हैं, हम कहते हैं खालिद आया, फिर वो वहीं से चला गया, वो जम्मू पहुंचा, हम कहते हैं, फिर हम दोबारा खालिद का नाम लेते हैं, बस एक बार आता है। इसी तरह होता है नसरा खालिदुन माजिदन सुम्मा ज़हाबा इलल बैति, अब हमें लाया दोबारा सुम्मा ज़हाबा खालिदुन, इसलिए कि अल्फाज में बार बार किसी चीज़ का तकरार ये ठीक नहीं रहता है। जिस तरह हम उर्दू में तकरार नहीं करते हैं, इसी तरह अरबी में भी बार बार कोई बात नहीं लाई जाती, इसलिए कि कलाम के खिलाफ होती है ये बात। तो इसीलिए यहाँ पर इसको जाहिर नहीं किया। जब भी हम मतलब कहीं भी ये आएगा कुरान में बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल है कि शुरू में एक जगह तज़किरा आया, अब आगे जाके नहीं बयान करेंगे, सुम्मा अबसा वबसर सुम्मा अदबरा वस्तकबर फक़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, कहीं भी उसको नहीं लाया जिसका तज़किरा हो रहा है। जैसे अबसा वतवल्ला, जो कि यहाँ पे पता है कि तेवर किसने चढ़ाया या किसने मतलब जरा अपना चेहरा बनाया था, कुरान की तफसीर में आप अलैहिस्सलाम ने बनाया, लिहाजा आपका नाम नहीं लाया, बस सिर्फ इशारों में कुरान ने कहा अबसा।